آج میں جنات غلام قسط نمبر 25 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے مس نہ ہو۔ آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ذہن سے بوجھ کی چادر تو سرک گئی تھی، مگر دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد زنان خانے میں چلا گیا۔ چاچی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تسبیح کے دانے ان کی انگلی کی گردش سے آگے آگے سرک رہے تھے۔ زیر لب وہ پڑھ رہی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں سرخ دورے بہت نمایاں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خون اور نمکین پانی پتلیوں کی گرد منڈلا رہا ہے۔ چہرے سے رنجیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ بوڑھے آرے تھرتھرا رہے تھے۔ میں خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ تسبیح مکمل کر چکی تو میرے اوپر پھونک ماری۔ شاہد پتر، تو بھی میرے لیے نصیر جیسا ہے۔ میں نے تجھ میں اور اس میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ ان کی آواز میں ارتعاش تھا۔ چاچی خیریت تو ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے چاچی کو کبھی اس قدر دل گرفتہ اور الجھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ پتر، میں تمہیں کیا بتاؤں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میں دو کشتیوں کی سوار ہوں، ایک طرف تمہارے چاچا جی اور دوسری طرف شاہ جی۔ ایک ہی بات مانتی ہوں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے۔ ایک طرف سہاگ ہے تو دوسری جانب میرا ایمان اور چاچی۔ میں نے بے اختیار ہو کر ان کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ نہیں چاچی، بالکل نہیں، یہ آپ کا ایمان نہیں ہے، یہ دین بھی نہیں، مذہب بھی نہیں چاچی۔ ایسا بالکل نہیں سوچنا۔ وہ جو دوسری طرف ہے نا، تمہارا سہاگ، وہ سب سے مقدم ہے۔ یہ جسے آپ دین سمجھتی ہو، یہ شیطانی چرخا ہے جو دکھوں کو کاٹ رہا ہے، سچائی کو ادھیڑ رہا ہے۔ چاچی، تم مسئلے پر بیٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ چاچی مانگ، اس ذات سے مانگ چاچی جو ادھر تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا، اس کا دین یہ نہیں کہتا جو شاہ صاحب کرتے اور دکھاتے ہیں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، یا چاچی کی کم علمی، معصومیت اور اندھی عقیدت کا دباؤ تھا کہ میرے اندر کا طوفان اس کی ایک ضرب سے پھوٹ پڑا اور پھر میں اپنی زبان کو روک نہ سکا۔ چاچی کے لب کھلے رہ گئے، آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور اس کے بوڑھے آرزوؤں کا ارتعاش تھم گیا۔ پتر، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شیطانی چرخا اور پھر یہ بابا جی؟ چاچی، میں بابا جی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے اور ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ میں انہیں نہیں سمجھ سکا چاچی، مگر یہ جو ہیں اپنے شاہ صاحب، ان کے اندر مجھے کھوٹ نظر آتی ہے۔ چاچی، وہ جو کہتے ہیں سچ نہیں دکھتا۔ انہوں نے ملک صاحب کی بیٹی کو جن سے آزاد کرا دیا ہے، لیکن چاچی ہماری زلیخا کو نارمل نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے اندر ہوس ہے۔ وہ زلیخا کو اپنی دلہن بنانا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس کی صحت سے ڈرا دھمکا کر خوفزدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور چاچی، آپ سمجھتی ہیں کہ زلیخا کے دکھوں کا مداوا صرف شاہ صاحب کر سکتے ہیں؟ نہیں چاچی، بالکل نہیں۔ خدا کے لیے چاچی کچھ کرو اور اس مکار شخص کو گھر سے نکال دو، ورنہ وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ اور تو اپنی جس زلیخا کے سکھ کے لیے سب کر رہی ہے نا، ساری عمر روگ میں گزار دے گی۔ جذبات سے میری آواز کانپ رہی تھی اور میرا لہجہ بہت تیز ہو گیا تھا۔ چاچی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ پتر، ہوش کر۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر سہلانے لگی۔ اسی لمحے بڑے ملک صاحب کی آواز سنائی دی۔ اس کو ہوش نہ دلا رضیہ، یہ ٹھیک کہتا ہے، ہوش دلانا ہے تو اپنے آپ کو دلا، تیرا ضمیر منو مٹی تلے دبا ہوا ہے۔ شاید پتر اسے کھود کے باہر نکال رہا ہے۔ رضیہ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو عقیدتوں کے سیراب سے باہر نکال لا۔ پھر تو جیسے برسوں کا پانی چاچی کی آنکھوں سے سیل رواں کی طرح رواں ہو گیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ ملک صاحب اور میرا دل بھی بھر آیا۔ ٹھیک ہے، میں ہی اندھی ہوں، بے رحم اور کم عقل ہوں، اپنی بیٹی کی دشمن بن گئی تھی، مگر اب میں اس کو جوتے مار مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں چاچی، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اب خاموش ہو جا پتر، میں نے ہی آگ لگائی تھی، میں ہی اسے بجھاؤں گی۔ چاچی نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسلح لپیٹ کر اضطراری حالت میں جوتی پہننے لگیں۔ چاچی، اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا، ہم اس وقت آتش فشاں کے منہ پر بیٹھے ہیں۔ میں نے سمجھایا، شاہ صاحب کے پاس پراسرار قوتیں ہیں، وہ ہمیں پریشان کر سکتے ہیں، زلیخا کو مار ڈالیں گے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے رضیہ، سمجھداری سے کام لو۔ ملک صاحب بھی انہیں سمجھانے لگے۔ چاچی، اللہ نے ہماری مدد کی ہے، یہ شادی کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہو چکی ہے، لہٰذا اس التوا کو مزید آگے کر دیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، وہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔
हम खुद भी इस ज़ात करीम के सहारे से कुछ करते हैं। मैंने चाची को मजीद मशवरे दिए और इन्हें समझा दिया कि अगर अब बाबा जी सरकार भी कहें तो जुलेखा की बीमारी को आड़े लाकर इस मामले को मजीद आगे ले जाया जाए। हम अपने तौर पर मुतमईन हो गए थे, मगर हमें क्या मालूम था कि हमारी आजमाइशों के अभी और भी इम्तिहान थे। मैं कमरे में सोने चला गया। अभी मेरी आंख लगी थी कि बाहर गोली की आवाज सुनाई दी। मैं दहशतज़दा होकर उठ पड़ा। बाहर शोर बरपा था। मैं झट से बाहर निकला। राहदारी में नौकर नसीर को काबू कर रहे थे। इसके हाथों में 12 बोर की बंदूक थी और वो उससे छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं इनकी तरफ भागा। क्या हो रहा है ये? शायद पुत्र ये पागल हो गया है। चाची दरवाजे के पास खड़ी थी। अपने बाप को कत्ल करना चाहता है ये। क्या? हाँ, मैं कत्ल कर दूंगा इसे। तुम सबको मार डालूंगा। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। नसीर भिपरा हुआ था। 3 नौकरों के काबू में नहीं आ रहा था। इसी जोर आजमाई में गोली चल गई। ये तो खुदा का शुक्र था कि नाली का रुख बाहर बागीचे की तरफ था, वरना अब तक किसी एक का खून हो चुका होता। नसीर मेरे भाई, होश में आओ। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथ से बंदूक छीन ली। सिंगल नाली की बंदूक थी। इसमें एक ही कारतूस था जो इस्तेमाल हो चुका था और अब ये खाली हो चुकी थी। तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। नसीर मुझे गालियां बकते हुए चिल्लाने लगा। तुम सबने मेरे बाबा जी सरकार से किया हुआ वादा तोड़ा है। तुम सबने धोखा किया है। मेरे शाह साहब को ठेस पहुंचाई है तुम लोगों ने। इसके मुंह से झाग बह रही थी और आंखें किसी तागूती इंसान की तरह सुर्ख होकर उलट रही थी। इसके पूरे बदन पर रेशा तारी था। ऐसा कुछ नहीं हुआ नसीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने नौकरों से कहा, पीछे हटो, तुम छोड़ दो इसे, जाओ और पानी लेकर आओ। मैंने इस दौरान राहदारी में दूर तक देखा। शाह साहब दिखाई नहीं दिए। मेरे ज़हन में धमाके हो रहे थे कि नसीर को यकायक क्या हो गया है। हमने तो इसे अपने मंसूबे से आगाह नहीं किया था। मुझे शक हुआ कि मुमकिन है शाह साहब को इस मंसूबे की खबर हो गई हो और उन्होंने अपने अंधे अकीदतमंद नसीर को वर्गलाया हो। मेरा शक सही साबित हुआ। नौकरों ने नसीर को छोड़ा तो वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने के बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे मेरे वजदान ने एहसास दिलाया कि शाह साहब ने लाजमन अपने किसी अमल के जरिए नसीर को काबू करके अपने वालिद के कत्ल पर उकसाया होगा। अगर वाकई ऐसी बात थी और नसीर इनके किसी अमल का शिकार हुआ था तो इसे होश में लाना मुश्किल था। अगर इसे कोई होश में ला सकता था तो ये सिर्फ शाह साहब ही थे, या फिर बाबा जी सरकार या टाहली वाली सरकार। मगर इस वक्त बाबा जी और टाहली वाली सरकार हमें मुयसर नहीं हो सकते थे। मैंने सोचा कि अगर वो मुयसर होते भी तो लाजमन वो शाह साहब की तरफदारी ही करते। पुत्र, शाह साहब को बुलाओ, इसको होश में लाएं। चाची ने अपने लखते जिगर को तड़प तड़प कर बेहोश होते देखा तो इनकी ममता एक बार फिर हारने लगी। चाची नहीं, इन्हें नहीं बुलाना। मैंने इनके कान में सरगोशी की। वो यही तो चाहते हैं। उन्होंने ही नसीर पर जादू करके इसकी अकल बांध दी है, इसीलिए तो ये अपने बाप के खून का प्यासा हो गया था। कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। मेरा पुत्र तड़प रहा है, इसको होश में लाओ। चाची इस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बड़े मलिक साहब भी अंदर से बाहर आ गए थे। वो नसीर को होश में लाने लगे। नसीर की आंखें खुली पड़ी थी और पथराने लगी थी। मेरा दिमाग बड़ी तेजी से हरकत कर रहा था। मान मेरे ज़हन में झमाका हुआ। टाहली वाली सरकार की बहुत सी बातें मेरे ज़हन में ताज़ा हो गईं। इन्होंने मुझे कुछ वज़ाइफ अता किए थे। मैं कोई आमिल तो था नहीं, लेकिन मेरा इस्लामी अलूम पर पुख्ता यकीन था। ये आयात रब्बानी पर मुश्तमिल चंद आयात और इस्माए रब्बी थे। मैंने फौरन वुजू किया और पानी लेकर इन वज़ाइफ को पढ़कर पानी पर दम किया और फिर दमशुदा पानी नसीर के पूरे बदन पर छिड़क दिया। अल्लाह का हम पर करम हुआ और कुछ ही देर बाद नसीर की हालत बेहतर होने लगी और कुछ ही देर बाद वो होश में भी आ गया। वो खाली खाली नजरों से सबको देखने लगा, लेकिन अभी उसकी हालत संभली नहीं थी। उसका पूरा बदन लरज रहा था और आवाज में कपकपाहट भी थी। मुझे क्या हुआ है, वो सबके चेहरे देखने लगा। चाची उसका मुंह चूमने लगी। मेरा लाल, माँ तुझे वारी। कुछ नहीं हुआ तुझे? नहीं माँ। वो कुछ कहते कहते रुका और उसकी आंखें राहदारी में गिरी पड़ी बंदूक पर पड़ी। ये बंदूक यहाँ क्यों पड़ी है माँ? मैं बताता हूँ तुझे, मैंने कहा, लेकिन अभी तेरी हालत ठीक नहीं है। मैं नौकरों की मदद से इसे उठाकर कमरे में ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। तुम बताते क्यों नहीं मुझे क्या हुआ है? वो बार बार मुझसे पूछ रहा था। उसके बदन पर अभी तक लर्जा तारी था और फिर जैसे इसे कुछ याद आ गया। ओह मेरे खुदाया, मैं क्या करने जा रहा था? उसने अपने वालिद की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें निदामा से झुक गईं। शाह साहब, आपने अच्छा नहीं किया। वो नजरें गिराकर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, ये अच्छा नहीं हुआ। वो सर थाम कर रोने लगा। क्या हुआ था मुझे बताओ। मैंने इसे सहारा दिया। खुदा का शुक्र है कि तुम बहुत बड़े गुनाह और जुर्म से बच गए हो। मुझे बताओ शाह साहब ने क्या किया था?
नसीर कुछ कहते कहते रुक गया और नौकरों का मुंह तकने लगा। तुम बाहर जाओ। नौकर बाहर चले गए तो वो बोला, मुझे शाह साहब ने कहा था कि तुम लोगों ने बाबा जी और शाह साहब की तौहीन की है और इनके खिलाफ बड़ी गंदी बातें की हैं। शाह साहब ने मुझे कहा था कि वो बाबा जी जैसे बुजुर्ग जिन्नात को काबू करने के लिए उलूम सिखाना चाहते थे। रिश्तेदारी के बाद वो मुझ पर ही इन्हिसार करते, लेकिन मेरे वालिद ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ कहा था जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने वालिद को कत्ल करने का इरादा कर लिया। इसके आगे वो ना बोल सका। मैं सन्नाटे में आ गया। शाह साहब ने कत्ल उम्मत की कोशिश की है नसीर, उन्होंने कत्ल पर उकसाया है। उफ मेरे खुदाया, ये कैसा पीर आमिल है जो औलाद को अपने बाप के कत्ल पर उकसाता है। मैंने सर थाम लिया। मेरे ज़हन में शाह साहब की इबादतें, रियाजतें और नमाजें ताज़ा हो गईं। रात के आखिरी पहर खुदा के हुजूर सर झुकाकर इनकी गिड़गिड़ाती सदाएं गूंजने लगीं। मुझे इनका वो रूप भी याद आ गया जब कब्रिस्तान में इनके धड़ पर किसी इंसान के बजाय दरिंदे का चेहरा नजर आ रहा था। मैं तो कहता हूँ पुलिस को इत्तला कर देते हैं, मलिक साहब कहने लगे। मुझे शक है चौधरी के घर में चोरी भी इसी ने कराई थी। मगर चाचा जी, इस तरह तो आग भड़क उठेगी। मुझे रियाज शाह की शैतानी कुव्वतों का भी खौफ था। अगरचा इस वक्त मेरे दिल को इतनी तकवीत पहुंच चुकी थी और मेरा ईमान भी ताज़ा हो चुका था कि अगर मैं भी वज़ाइफ पढ़ता रहूं तो इसके सहरी असरात से महफूज रह सकता हूं। लेकिन मैं कोई आमिल नहीं था और ना ही आमिल बनना चाहता था। मुझे इनकी रूहानी कुव्वतों को पढ़ते हुए एक अनजाना सा खौफ भी लाक हो रहा था। हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज का दिन हम देखते हैं कि वो और क्या कर सकता है। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे एक बुजुर्ग मिले थे, मुमकिन है वो हमारी मदद कर सके। मैंने जानबूझकर बाबा तीले शाह के बारे में ज्यादा बातें नहीं की थी। मलिक साहब सोच में पड़ गए, फिर बोले, ऐसा ना हो कि हम एक और मुसीबत में पड़ जाएं। इसके सिवा चारा भी तो नहीं है। मैंने नसीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे इब्तिदाई मदद देकर होश में ले आया हूँ, मगर ये इसका इलाज नहीं है। इन लोगों के साथ रहकर मैंने ये बात जान ली है कि वज़ाइफ और अमलियात पर कुदरत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत होती है, तब जाकर इनसे हस्ब तवक्का नताइज हासिल होते हैं। नसीर का इलाज ना किया गया तो ये भी जुलेखा की तरह बीमार हो जाएगा। चाची ने सुना तो तड़प उठी। अल्लाह न करे पुत्र। ममता की मारी अपने बेटे से लिपट गई। सोने परवरदिगार, मेरे लाल की हिफाजत फरमा। तूने ये अमल किससे सीखा है पुत्र? मलिक साहब ने सवाल किया। मैंने इन्हें मुख्तसर बताया कि किसी बुजुर्ग ने पढ़ने के लिए दिया था। मैंने इन्हें टाली वाली सरकार के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इन्हें जानते थे। अगर मैं इन्हें यह वजीफा हासिल करने की दास्तान सुनाता तो इनके ज़हन में बहुत से सवाल पैदा हो जाते जिनके जवाबात मेरे लिए देना मुश्किल था। पुत्र जी, इस वजीफे में इतनी ताकत है तो ये नसीर होश में आ गया है ना, तो किसी और के पास जाने की बजाय खुद इसका इलाज क्यों नहीं करते? नहीं चाचा जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी मिसाल तो इस शख्स जैसी है जो चंद दवाओं के नाम जानता है और किसी आम मर्ज के लिए दवा तजवीज़ कर सकता है, लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं कर सकता। इलाज के लिए किसी माहिर मुअल्लिज से ही राब्ता करना पड़ता है। ये आमिल कामिल वगैरह डॉक्टर हैं। जिस तरह एक डॉक्टर कई साल तक शब्बो रोज पढ़ाई और तरबियत के बाद इलाज मुआवजे पर दस्तखत हासिल करता है, इसी तरह रूहानी मुअल्लिज बनने के लिए मुजाहिदे और चिल्ले काटने पड़ते हैं। मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम ठीक कहते हो पुत्र जी, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि अगर हमारा ईमान पुख्ता है और किताब इलाही से हमारी मोहब्बत बेपनाह है तो फिर कोई भी शैतानी कुव्वत हम पर गालिब नहीं आ सकती। चाचा जी ने मेरे दिल की बात छीन ली थी। आप सही कहते हैं। मैंने उनकी बात की तायीद की। हमारा ईमान मजबूत और अल्लाह का जिक्र हमारे लबों और कल्बों पर बहते पानियों की तरह रवां दवा रहे तो ये जादू टोने की कसाफतें हमें कभी आलूदा नहीं कर सकती। लेकिन चाचा जी, यहाँ एक लतीफ पर्दे ने मामलात को मुख्तलिफ बना दिया हुआ है। यही मामला हमारी अक्लों से मावरा है। ईमान कमजोर पड़ जाए तो इंसान ढह जाता है, लेकिन अगर ईमान की पुख्तगी बरकरार रहे तो इंसान गिरता नहीं है। हमें अपने ईमान की मजबूती के साथ अपने मामलात को चलाना है, कमजोर नहीं होना हमें। मैंने इन सब से इजाजत ली और इसी वक्त शहर के लिए हवेली से निकलने लगा। मैं शाहजाद से मिलना नहीं चाहता था। इनसे नजरें बचाकर मैं जा रहा था कि मान इनकी आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। मैंने पलटकर इनकी तरफ देखा। इधर आओ, उनकी लहजे में सख्ती थी। मैं उसी जगह ठहरा रहा। मैं कहता हूँ इधर आओ, वो जलाल में बोले। इस बार मैं इनके पास चला गया। तुम क्या समझते हो मैं कुछ नहीं जानता? वो गुस्से में खोलते हुए मुझे धमकी देने लगे। तुमने देख लिया नसीर को किस तरह मैंने बेबस कर दिया था। तुम क्या चीज हो? एक दो लफ्ज सीख लिए खुद को तरम खान समझने लगे हो। याद रखो, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे सीने में उंगली डालकर तुम्हारा दिल निकाल दूं। वो अनगज़श शहादत मेरे दिल के मकाम पर जब होने लगे
तुम्हें बड़ा मान है ना खुद पर। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर खामोश खड़ा रहा। तुम्हारी सारी हवा निकाल दूंगा। उनके अंदर का दरिंदा मेरे सामने आया हो रहा था। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं आपकी शिकायत बाबा जी से करूंगा, मैंने कहा। वो कह के लगाने लगे, बाबा जी से कहूंगा? अरे जाओ और इन्हें तलाश करके बताओ कि रियाज शाह ने तुम लोगों के साथ क्या सलूक किया है। उन्होंने उंगली मेरी नाक पर रखी और जोर से दबाकर बोले, मेरे लाल, बाबा जी मेरी बात मानते हैं। तुम लाख इनकी मिन्नतें करो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं यकीन तो अब बाबा जी से मुलाकात हो तो आजमा कर देख लेना। अच्छा, देख लूंगा, मैंने उखड़े लहजे में जवाब दिया। मैं इनसे उलझना नहीं चाहता था। मुझे खदशा था अगर मैं उलझ पड़ा तो वो कोई शैतानी हरकत कर सकते हैं। अब मैं जाऊं? मैंने कहा। जाओ, लेकिन अपने कमरे में। वो मुझे तंबीह करते हुए बोले, अगर तुमने अपने कमरे से निकलने की कोशिश की तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जाओ और अपने यार की तीमारदारी करो। मैं जान गया था कि उन्होंने लाजमन कोई ऐसी पेशबंदी कर दी होगी कि मैं अब हवेली से बाहर न जा सकूं। मैं वापस अपने कमरे में गया तो नसीर चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। चाची जुलेखा और मलिक साहब उसके पास गमज़दा से बैठे थे। मुझे देखा तो उनके चेहरों पर जरा सीमगी सी पैदा हो गई। तुम गए नहीं? चाची बोली। मैं जाना चाहता था लेकिन शाह साहब ने रोक दिया है। मैंने लाचारगी से मुट्ठियां पींचते हुए जवाब दिया। इसे क्या हुआ है? मैं नसीर के पास पहुंचा। तुम्हारे जाते ही इसकी हालत खराब हो गई थी। मलिक साहब परेशानी के आलम में बोले, अब क्या होगा बेटा? मैं नसीर के सरहाने बैठ गया। अल्लाह हमारे साथ है। कहाँ है अल्लाह? जुलेखा आहिस्तगी से बोली, वो बेकसों से दूर क्यों है? उसका लहजा शिकवों शिकायतों से भरा हुआ था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अल्लाह हमारे साथ है जुलेखा। मैं उसके करीब गया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे समझाया, जुलेखा दिल छोटा ना करो, मायूसी कुफर है। वो खामोश हो गई हमेशा की तरह। गो उसकी आंखों में शिकवे शिकायत, हुज़्न मलाल तैरते रहे। मैं नसीर के सरहाने बैठ गया। पास ही पानी का गिलास भरा रखा था। मैंने कुछ आयात को एक खास तरीके से पढ़ा और पानी पर फूंक कर नसीर पर छिड़क दिया तो कुछ ही देर बाद उसकी हालत संभलने लगी। 1 घंटे तक मैं उसके सरहाने बैठा वज़ाइफ पढ़ता रहा। उसकी तबीयत कुछ बहाल हो गई थी मगर लगता था कि उसका खून किसी ने चूस लिया है। सुर्ख सफेद रंगत जर्द और मटियाली हो गई थी। आंखों के गिर्द स्याही माइल हल्के नुमाया हो रहे थे। यही हालत मैंने जुलेखा की भी देखी थी। उसकी हालत कदरे संभली तो मैंने एक बार फिर हवेली से निकलने की कोशिश की। इस बार मैंने पिछवाड़े से बाहर जाना चाहा था। मैंने जो ही कमरे से बाहर पांव रखे, नसीर की करबनाक आवाज सुनाई दी और मैं जल्दी से वापस लौट आया। ओ खुदाया, मैं समझ गया था शाह साहब ने हमें अपने शैतानी जाल में बुरी तरह फंसा दिया था। उन्होंने नसीर को अपने काबू में किया हुआ था। जो ही मैं उससे परे हटता था तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। मैं जान गया कि उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। मैं बेबसी से कमरे में चक्कर लगाने लगा। सिवाय अल्लाह की जात के हमारा कोई परेशान हाल नहीं था। हम सब एक दूसरे के मुंह तकने और दिलासे देते रहते थे। जो ही शाम ढल गई उस रात हम सब एक ही कमरे में बंद होकर रह गए थे। न चूल्हा गर्म हुआ न कोई बर्तन खटका। मैं कमरे में नसीर के पास एक चौकीदार की तरह बैठकर रह गया। ये इशा के करीब का वक्त था जब गाजी हमारे कमरे में आया। वो इंसानी रूप में ही था और उसका लहजा भी बिगड़ा हुआ था। कहने लगा, तुम्हें शाह साहब ने बुलाया है। मैंने गाजी की आंखों में देखने की कोशिश की मगर ताबे नजर बर्दाश्त न कर सका। उससे कबल उसने मुझे कभी तू और तुम कहकर मुखातिब नहीं किया था। उसकी आंखों में जिन्नात की रिवायती वहशत और गजब था। वो गायब हो गया और मैं शाह साहब के कमरे में चला गया। कमरा गुप अंधेरे में गर्क था। मैं चौखट के पास ही खड़ा हो गया। अंदर आ जाओ, बाबा जी की भारी भरकम आवाज सुनाई दी। मैं अंधेरे में दाखिल हो गया और चंद कदम चलने के बाद रुक गया। तुम्हारा खून बड़ा गर्म हो रहा है। बाबा जी मेरे सामने खड़े थे और उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। इस वक्त वो अपने जिन्नाती रूप में ही थे। मैंने आंखें बंद कर ली थी लेकिन मेरी सारी हसियात चौकस हो गई थी। दिल भी बेइख्तियार होकर धड़कने लगा था। लेकिन उस लम्हे भी मैं अपने अल्लाह को नहीं भूला। मुतलातिन दिल के साथ दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगा। अपने अंदर के जवार भाटा को इससे करार आ सकता था। बाबा जी जब जिन्नाती रूप में आते थे तो इसी तरह गुप्त अंधेरा किया जाता था ताकि इनके असली खदोखाल नजर न आ सके। तुमने हमारे बेटे रियाज शाह
के खिलाफ बदगुमानियां पैदा करके सबको इनके खिलाफ कर दिया है। बाबा जी गजबनाक लहजे में बोल रहे थे। सरकार, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जुर्रत करके लब खोले। बकवास करते हो, हम सब जानते हैं। वो धाड़े तो मेरा दिल सीने की दीवारें तोड़कर बाहर फुदक जाने लगा। कमरे के दरो दीवार थरा उठे। उन्होंने अपने लतीफ रुई जैसे हाथ से मेरे बाजू पर थप्पड़ मारा और मैं कांप कर रह गया। सरकार, आप सब कुछ जानते हैं और फिर भी खामोश हैं। मैं बोलने से बाज नहीं आया। आपको हर बात की खबर है, मगर आप ये नहीं जान सके कि ये शाह साहब अंदर से कितने घिनौने हैं। ये पापी हैं सरकार। इन्होंने आज एक मासूम और आपके अकीदतमंद नौजवान को उसके बाप के कत्ल पर उकसाया। सरकार, आप अगर ये सब जानते हैं तो मुझे बताएं, क्या हमारा मजहब हमें ये अदाब सिखाता है? मैं रूहान सा हो गया। अगर आप ये समझते हैं कि शाह साहब स्याह करें या सफेद, इनका हर फेल दुरुस्त है, तो फिर मुझे ये कहने दीजिए कि आपका इस्लाम और सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुनकर बाबा जी की सांसें तेज हो गईं। मैं अब हर तरह के अजाब को सहने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। हर तरह की फिक्र और नताइज से बेपरवाह होकर मैं बोलता रहा। सरकार, हम तो आप जैसी हस्तियों के अकीदतमंद थे, लेकिन आपने हमारी सारी अकीदत को पेशमानी में बदल दिया है। ये इंतकाम ले रहे हैं हम सबसे। मजबूर और बेबस लोगों का ईमान खराब करके इन्हें कमजोर बनाकर अपनी अताअत कराना कहाँ का इस्लाम है? मैंने देखा है और सुना है, आप और आपके जिन्नात पैरोकार पहरों कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना बयान करते हैं। सरकार, एक तरफ आपका ये मकाम है और दूसरी तरफ आप एक ऐसे शख्स के हाथों मजबूर नजर आ रहे हैं जो ईमान फरोश है। शाहिद, खामोश हो जाओ। बाबा जी धाड़े, खामोश हो जाओ तुम। रियाज शाह, तुमने सुना है ये क्या कह रहा है? बाबा जी गंभीर आवाज में बोले। सुना है सरकार, ये बकवास करता है, सहाफी है ना, जुबान बहुत चलाता है। रियाज शाह बाबा जी का नफ्स शनास था। उसने जब देखा कि मेरी हकीकत कुशाई ने बाबा जी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो इसे सूरत-ए-हाल बदलती हुई महसूस हुई। बकवास नहीं कर रहा ये, बाबा जी ने तेज लहजे में कहा। तुम अपने साथ हमें भी जलील कराते हो। मैंने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारी वालदा की वजह से तुम्हें रियायत देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों का ईमान बेचते फिरो और हम तुम्हें माफ कर दें। मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। सरकार, मेरी बात तो सुने। अब सुनने को रह क्या गया है? बाबा जी बोले। रोशनी जला दो। तुमने मामला को जिस हद तक खराब किया है, इसे अब दुरुस्त करना होगा। तुम्हें मैं शुरू दिन से ये बात समझाता रहा हूँ कि अगर एक कामिल मुंतकिम मिजाज हो जाए तो इससे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं होता। तुमने अपनी हवस और इंतकाम की खातिर ये घिनौना खेल खेला है। मैं माफी चाहता हूँ सरकार। रियाज शाह ने लाइट जला दी और फिर मैंने इसे बाबा जी के कदमों में झुके देखा। बाबा जी इंसानी रूप में आ चुके थे। आओ मेरे बच्चे, इधर मेरे पास आओ। बाबा जी ने हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया और रियाज शाह को पैरों से हटा दिया था। मेरे पास बैठो। वो पलंग पर बैठ गए। गाजी, तुम जाओ और बाकी सब लोगों को भी बुला लाओ। गाजी चला गया तो वो मुझसे मुखातिब हुए। शाहिद मियाँ, ये शाह साहब अभी नादान हैं। जवानी का आलम है मियाँ, तुम जानते हो नदी दरिया के किनारे कमजोर हो तो पानी में जरा सी तेजी आ जाने से किनारे टूट जाते हैं और पानी बह निकलता है। ये रियाज शाह के अंदर अलूम की तगयानी बरपा रहती है, लेकिन इसका ज़र्फ कमजोर है। इसमें बर्दाश्त बहुत कम है। कीना भरा हुआ है इसमें। हालांकि ये बात मारूफ है कि जिन्नात में कीना सबसे ज्यादा होता है। इनमें गजब की शरह इंसानों की निस्बत ज्यादा है, लेकिन हम भी इस वक्त दंग रह जाते हैं जब किसी इंसान को कीना और गजब की हालत में देखते हैं। माफ करना, ये जिन्नात का रवायती गजब ही था कि मैं रियाज शाह की बातों में आ गया। उनके लहजे से शर्मिंदगी झलक रही थी। मैं अब इसे समझा दूंगा। तू भी मलिक साहब और दूसरे लोगों के दिलों से इसके लिए नफरत कम कर दो। अब तुम लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। जी सरकार, जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अब बेहद खुश था। रियाज शाह पर मेरी ये फतह थी। मैंने बातिल को हक से तहे तीख कर दिया था। मेरा अंग अंग मसरूर था। कुछ देर बाद मलिक साहब नसीर को सहारा देते हुए अंदर ले आए। चाची और जुलेखा भी साथ थे। बाबा जी ने इनकी शिकवे शिकायत भी सुनी और रियाज शाह की तरफ से माफी मांग ली और वादा किया कि वो चंद रोज तक यहाँ से चले जाएंगे। हम सब मुतमईन हो गए थे। नसीर इसी रात भला चंगा हो गया था और जुलेखा की हालत भी संभल गई थी, लेकिन ये इत्मीनान तो एक दफा तसल्ली थी।